गए आप? Recording in progress. Listen that echo, right? Fine. Okay, clear. And sorry for this inconvenience because one of the device was not, working right now. So I need to shift to another device. Okay. But we will continue our cover up. Don't worry. Fine. So we'll start with our chemical properties. Okay. Now chemical properties, basically we are going to see four things. Okay. Oxygen, water, acids and bases. Right. Means our metals are going to react with oxygen, water. Means we are going to see only four properties right now. It doesn't mean that metals are not going to react with many more substances or chemicals, right? Yash, what happened, beta? Ma'am, when we will get the marks of science? Yes, ma'am. Science के marks ही नहीं मिले. Yes, beta. Just 1 second. Sakshi, ma'am. जी ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I think yesterday or the day before I have shared those papers. I already shared those papers. जी ma'am. You have shared it. Yes, ma'am. Okay, beta, you got it. Fine. You get it that you all of you will get that marks. Okay, and right now if you want, ma'am, should I share with them right now? If it's okay, then just give me last 5 or 7 minutes. I'll share all those marks. Okay, is it okay, beta? ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are having right now chemical properties. Will start with first of all oxygen. Okay, what will happen if any metal will react with oxygen? We will take one simple example that you were talking about. I think one of you were talking about it, right? If our iron is going to react with oxygen, okay, what will happen in that case? Rust. Rust. What is Ma'am. Ma'am, like that iron reacts with with air in presence of water. Ma'am, air and moisture. 1 second, beta. This device will create that echo and none of us will be able to then listen anything. So please do it turn by turn, okay? Because background sound and everything will mixed up together then. Fine, please one of you can just take that lead. Yes, beta? Yes, what are you saying, beta? Sagni. Ma'am, I was saying like that metals react with air in presence of water. Yes. Presence of water or moisture. Correct. Moisture means water only. Right? Moisture means water only. Right? So what will happen at the end of this reaction? Now, can we say that one of the reaction was what, beta? One is our metal, iron metal. It's going to react with water and oxygen and will create rust. Jung lagna, right? Kat lago. What is it? Rust. Okay. So that is known as reaction of metal base with rust, right? We will start today with that. First of all, we'll start with oxygen. Why we are studying here metals plus water first? Because our metals, specifically we will see sodium and potassium, they are going to react vigorously. Vigorously means what? Violently. If we are going to keep it at room temperature or we are going to put it inside water, we will see exactly what will happen. Okay, I'm going to start sharing my screen. Just wait for a while we are discussing. Before discussion, we'll just go through with that chemical reaction. Okay. Ma'am, my network bandwidth is showing low. Can I keep my? Yes, beta, you can. मैम इसमें Okay, we'll start from मैम आवाज ही नहीं आ रही. मैम मैं प्रेजेंट करूं? wait, beta, wait. Let me do that. मैम नहीं आएगा. Okay. Now, don't worry. Voiceover, I'm going to give it to you. Fine. Let it be like we'll start. नीचे option था मैम
शेयर ऑडियो ऑफ एमएम ऑन कर दो। Yeah, fine, I know. Just let me do that setting. Just give me a moment. अब at the moment पे अगर चिल्लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? Just give me that मैम moment. उसमें नहीं था, मैम उसमें नहीं, जो जूम सेटिंग्स में आता है ना, उसमें जूम में जा मैम, जूम में। जूम हाँ, wait बेटा, wait. किया। मैम देखो शेयर ऑडियो लिखा है यहाँ। Here we will discuss about the reaction of metals with हाँ different मैम अब आ रही है। elements. Specifically, yes बेटा, I'm nodding. हाँ बोलो क्या हुआ? मैम अब आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, अब ये बोलने की जरूरत थी नहीं थी ना? ठीक है, अब स्पेसिफिकली सोडियम और पोटेशियम हमें देखना है, सोडियम और पोटेशियम, एंड स्पेसिफिकली हम और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड से, ठीक है? लेट्स सी exactly what is that vigorous reaction and why it's not going to stay at room temperature or inside water. Like oxygen, water, acids and bases. Okay, ये आपके क्लास वर्क में लिख लो अभी, आपके साइंस के क्लास वर्क में, यानी ट्यूशन का जो भी आपका नोटबुक है उसमें सेंटर में लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स। आपको पता है कि कैसे लिखना है, राइट? सेंटर में लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स और उसके 4 कॉर्नर्स में वहां पे एरोस करके लिखो, अगर मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो, या फिर वाटर। दूसरे नीचे के 2 कॉर्नर्स में लिख दो सेम इसी तरह से एसिड्स एंड बेसेस। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लेना। कॉर्नर्स पे ही लिखना, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन खत्म करेंगे तो उसके बारे में आप उसके नीचे डिटेल्स ऐड करने वाले हो, ठीक है? हो गया मैम। मैम एक मिनट, डन मैम। ओके, सबका हो गया बेटा? फाइन, अब हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे पहले। What will happen if metal is going to react First, with reaction of metal with oxygen. When metals react with oxygen, they form अब यहाँ base. पर हमारी केमिकल इक्वेशन स्टार्ट होगी, है ना? यानी सबसे पहला ऑक्सीजन के नीचे लिखो बेटा, पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट करके जनरल इक्वेशन लिखो। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, और एरो करके लिखो मेटल ऑक्साइड्स। ये जनरल इक्वेशन है। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या फॉर्म करेगी एट द एंड ऑफ? मेटल ऑक्साइड्स, या फिर स्लैश करके लिखो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, है ना? उसके ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्साइड यानी क्या? उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होगा और वो एक फॉर्म, जैसे आयरन के अंदर रस्ट के फॉर्म में दिखता है, राइट? हमें ऑक्सीजन के नीचे लिखना है ना? हाँ, ऑक्सीजन के नीचे लिखो मेटल प्लस ऑक्सीजन, एरो करो राइट साइड पे और लिखो मेटल ऑक्साइड्स। यानी अगर इस इक्वेशन में हम लिखे मेटल के नीचे लिखो, अब मेटल के नीचे एक चीज लिखो Fe प्लस ऑक्सीजन, यानी क्या? O2, राइट? क्या मैम फिर से बोलिए। यस बेटा, मेटल प्लस ऑक्साइड। ऑल ऑफ यू प्लीज। मैम आपका वॉइस डबल आ रहा है। हाँ, मुझे समझ में आ गया बेटा। एक बार सबकी आवाज प्लीज म्यूट कर दो खुद को, म्यूट ही रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यस। एक बार ये पूरा फिनिश कर लेते हैं, फिर बाकी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? जैसे स्क्रीन में यहाँ पे अभी जो जनरल इक्वेशन आ रही है वो लिख लो, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, बस इतना लिख लो। अगर हम मेटल यहाँ पे लेते हैं आयरन और वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सो Fe प्लस O2, तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कौन सी मेटल है यहाँ? बेटा अभी अनम्यूट मत करना अपने आप को।
metal oxides, here iron oxide or oxides of iron. Okay. Basic metal oxides. You know that during rusting, iron reacts with oxygen in the air to form iron oxide. This This is our equation, Fe plus O2 plus here one additional requirement is H2O. If water or moisture is there in the air, like in monsoon season, you will see that increasing in number, okay, or increasing in amount. So plus H2O, so Fe2O3, it's nothing but what? Iron oxide or oxides of iron. Fe plus O2 plus H2O. Iron plus oxygen plus water will form iron oxide. iron oxide formed is called as rust. Similarly, when magnesium ribbon is burnt in presence of oxygen, it forms magnesium oxide. बेटा प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ ना बोलना, ये चारों प्रॉपर्टीज एक बार फिनिश कर लेने दो, क्योंकि वरना इको क्रिएट होगा तो कोई भी नहीं समझ पाएगा. एंड देन विल टेक ऑल द क्वेरीज. हाँ हाँ, ये लिखने के लिए मैं टाइम दे रही हूँ ना आपको, टेंशन मत लो. आप टाइम, ओके जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट. ओके सो विल कंटिन्यू विद दैट कि अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा. यश बेटा आपके कनेक्शन के साथ क्या इश्यू है. then it will react with what? Magnesium. Magnesium is one type of what? Metal, right? This metal is going to react with oxygen and will form what is that? Metal oxide. That is our general equation. So what is our metal? Now put, instead of metal, like we have done in case of iron, we are going to put that magnesium. Magnesium oxide, that's it, MgO, or oxides of magnesium. So when we are going to burn that magnesium strip here, okay, what is going to form? Magnesium oxide. If the ash obtained on burning of magnesium ribbon is dissolved in water and test with red and blue litmus papers, you will find that the red litmus paper turns blue. This is you know that this is known as acidicity or basicity of that magnesium. Okay, means it's in a basic nature. Why we are just giving that heat? Because directly magnesium strip we cannot put inside that. We cannot directly check that acidicity and basicity with the help of litmus paper, right? So we need to dissolve it inside and then it's going to work. Because magnesium oxide formed is basic in nature. So we can conclude that metals react with oxygen to form basic metal oxides. Second, reaction of metals with water. Now Metals second, react first with is done for its first property, reaction with oxygen, magnesium and iron is only there. Okay, now with water we are having sodium and potassium. water to form basic oxides with evolution of heat. This can be understood clearly by performing an activity. Take a 250 ml beaker. Fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal. Dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Now observe carefully. Definitely we are not having those laboratories, but whenever you are performing such experiments, make sure you are going to do that in the presence of any elder person and with all the precautions, right? Now what we are doing exactly here, we are having sodium, and you know that sodium is the example of metal. Generally it's not in form of what? Solid, right? What is the what we have studied, beta? Solids are metals are solids in nature, but sodium is not. We can easily cut it with the help of knife. So if we are going to put it inside water, see what will happen. You will observe that sodium reacts vigorously with water. Note, during observation, keep away from the beaker. When reaction stops, touch the beaker. What do you feel?
you will feel that the beaker has become hot. This is because the reaction is exothermic and hence Okay, heat now what is it? We can see that those sodium, okay, it has just captured that fire, and that is vigorous reaction. Vigorous means what? It's going to catch that fire and it will act as a violent, it will act violently while it's mixing up with the water, or we are going to put it inside water, right? And it will start exothermic means what? Exo means outside it will go. Thermic means thermo, what is related to temperature. So it will start releasing heat outside. And that's why our beaker will become hot if you are going to touch it. is evolved. Now test the solution with red and blue litmus papers. You will find that the solution turns red litmus paper blue. So once This again, is it's because basic. when metals like sodium react with water, it forms sodium hydroxide. Sodium hydroxide is basic in nature, and so the red litmus paper turned blue. Thus, we can say that So we are metals having that proof. Sodium plus H2O. Okay, Na plus H2O. And we are going to give that reaction there will become NaOH. What is sodium hydroxide? One type of base material. And that's why we can prove it with the help of litmus paper by converting it into a blue color, right? like sodium reacts vigorously with water to form metal oxides with evolution of heat. Now you will be able to answer Now why this is sodium important. Okay. Above, actually, this question is popular amongst those who are preparing or setting paper. Why we are storing or keeping our sodium inside kerosene? Okay, so the question will arise in your mind, why only kerosene and not any other substance, right? Why we are storing it in kerosene? Because scientists have already performed various experiments to check that whether sodium is going to react with them or not. And at the end, we have finally concluded inside kerosene, if we are going to store, sodium is not going to react, because even if we are going to store it at room temperature in this form only, okay, what will happen? We are not able to do so, right? We will see that. is kept in kerosene. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. Okay, This reaction is exothermic and hence a lot of heat is evolved. But did sodium you see this one, beta? At room temperature, suppose if we are going to bring that sodium and we are going to put it at room temperature, if we can see it here, okay, it's going to react with oxygen because air is consisting of it. does not react with kerosene. It is therefore stored in kerosene. Third, reaction of metals with acids. When metals Okay, react, second property is clear, beta? Second property is clear? Yes. Okay. Yes, ma'am. Sodium, right? Now third is with acids. with acids, hydrogen gas is formed. We will do an activity to prove this. Take If a test tube acids are going to react with metal, they are going to release hydrogen gas. It's something like if we are going to add ENO inside water, so we can see that fizzy sound plus bubbles will start forming. Why? Because that is what it's showing us, that gaseous molecules are releasing there, and that's why we can see those bubbles. Same thing here we are going to see, but metal is going to react with acid. So which acid? First of all, and a beaker. Pour 5 ml of dilute sulfuric acid H2SO4, that is one type of acid, like hydrochloric acid you have studied, right, beta? It is present or will release inside our digestive tract. In 7th standard, you already studied, right? Similarly, one more type of acid is there. Generally, we are going to see them for these processes in chemistry. H2SO4, that is Ma'am. sulfuric acid. Okay? Ma'am, can you take me from another device? Yes, beta. Do it fast, okay? 5 ml of sulfuric acid we will take in one glass tube. Why generally we are performing everything or experiments in our glass vessels or glass equipments? Because glass is the perfect thing which is not going to react, and we can see something transparent in transparent manner. Yes, Veda, enter. You just have to enter first, and then only I am able to do so. Okay. Out of After the that, test what we will tube, do?
and 20 ml of soap solution in the beaker. In second beaker, we Now- are going to fill it with the soap solution. You know that soap solution means what? Acid, bases, and salt. You already studied in 7th standard, right? H2SO4 is acid, and in second beaker, we are going to fill it with the soap solution, that is base. Okay, why we are doing that? Because we need to check the presence of any gaseous molecules, whether they are releasing there or not. Now drop small pieces of zinc granules into the test tube. Now, zinc is example of metal. So we are having that zinc in form of granules. You have seen that better. Having just a second. Okay, yes, you are already admitted, beta. Fine. Yes, ma'am. Fine. So we are going to see that in that case, just a second. If consider that zinc is in form of granules, but iron it can be in form of wire, it can be in form of sheet, right? And sodium was in form of irregular shape, right? So these are varieties, and that is due to their individual properties. Okay, so zinc granules we are going to add in acid, and then whatever reaction will goes on, we will collect in soap solution. What do you observe? You will see bubbles in the test tube. Now allow the bubbles to pass through the soap solution kept in the beaker. Bring a burning matchstick near the mouth of the beaker. Why Now we are listen keeping that carefully. burning matchstick here at the mouth of beaker? So whatever gases molecules are releasing there, they're going to pass through that matchstick and will create that heat. It's something like we are using those Tara Mandal during our Diwali time, है ना? Those, I don't know, that Tattariya Tara Mandal, the really is creating that sound, है ना? That sound is specific sound. The same pop-up sound you will hear. Okay, you can easily listen that sound. And what is that? Presence of gaseous molecules. You will hear a pop sound. What does the pop sound indicate? The pop sound indicates the presence of hydrogen gas. It means if any metal will react with acid, okay, what it's going to produce? Hydrogen gas. Here, zinc metal reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. Okay, so reaction is zinc plus diluted means what? Not concentrated form. Okay, you know that now what is concentrated and diluted form, beta. So concentrated means if it's not mixed up with anything, it's a pure form. Suppose lemon juice, we are going to squeeze lemon again and again to full whole glass, है ना? But to prepare our lemon juice, okay, nimbu pani, we are going to pour some water inside. So that is diluted version. If it's fully lemon juice extract, then that is concentrated version. Okay, so this is diluted form of sulfuric acid, which is going to react with zinc. That is our metal, and what it will generate? Zinc sulfate. Zinc will react with sulfuric acid, zinc sulfate plus hydrogen. Okay. Thus, we can say that metals react with acids to produce hydrogen gas. So general reaction is metal plus acid is equal to hydrogen gas. Fourth, reaction of metals with bases. When metals react with bases, hydrogen gas is formed. Once again, This can be- if metals are going to react with bases, they are going to form what? Hydrogen gases only. But the reaction, okay, we are having different examples. Right now, we are not taking now acids. We are going to take bases, right? And bases are, what are the examples? Like we have seen soap solution. Similarly, we have seen sodium hydroxide, right? So these are the examples of bases. Proved by performing an activity. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it. So like we are having our medicines or pills available, right? So this pills directly we cannot find out by putting litmus paper, okay, on it over that surface and whether it's acidic or basic. We need to dissolve it and then we can check. Similarly, sodium hydroxide, this base material, okay, it's available in form of what? Pellets, okay? And these pellets we are going to dissolve first of all, and then we are going to start 5 ml of water. seeing that reaction. Dissolving Drop inside a water. piece of aluminium foil into it. Now, which metal we are going to see here in case of bases?
Aluminum foil. Aluminium. Aluminum foil is easily available, right, beta? We are wrapping our food. So we are going to take one piece of it and we will put it inside sodium hydroxide. Sodium hydroxide is our base and aluminum is our metal. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Now listen carefully. You will hear a pop sound. What does the pop sound indicate? The pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Okay, same like Here, acids. aluminium metal reacts with sodium hydroxide base to form sodium aluminate. So this is the reaction if aluminum will react with Al plus NaOH, that is our sodium hydroxide. Right now, just forget about what is that 2 written in front of it, right? That is nothing but balancing that chemical equation. Plus H2O, because we have dissolved our sodium hydroxide inside water. So we are writing H2O also. And at the end, it's going to form NaAl OH twice. Okay, what is OH4? What is it? Sodium aluminate. What is the sodium aluminate? बहुत That is बड़े-बड़े हैं। combination. Yes, beta. मैम जो इक्वेशन है वो बड़े बड़े हैं। मैम मार्क्स डिस्कस करना है। हाँ, मैं मार्क्स बताती हूँ। जस्ट अ सेकंड वेट। मैम हाँ 7-8 मिनट हमने बेटा मिस की है, तो हम एक्स्ट्रा 7-8 मिनट ले लेंगे। इसके बाद आपका क्लास नहीं है ना? नहीं मैम आई एम गोइंग टू शेयर, ये ऑलरेडी फिनिश ही हो चुका है। इसके बाद मार्क्स ही बताती हूँ। फाइन। एक बार ये इक्वेशन बड़े नहीं है साग्निक, एक ही बात सिर्फ ध्यान में रखो। अगर आपको Al का, अगर एल्यूमिनियम पता है कि Al है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको पता है NaOH है, एंड वाटर का तो पता ही है, राइट? तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग इक्वेशन को अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, ठीक है? आप एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हो बेटा, एल्यूमिनियम वर्ड्स तो लिख सकते हो ना कि एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, यस फिर मैम। हाँ मैम मिनट उतना Yes, तो लिख ma'am. सकते हो ना एटलीस्ट। हम कंप्लीटली ब्लैंक नहीं Yes, जाने ma'am. देंगे, है ना? NaAl यानी ये क्या हो गया? NaAl सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम व्हाट इज दैट? एल्यूमिनेट, है ना? तो ये हो गया उसका लास्ट वर्जन, यानी रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिली? तो क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया है कौन से बेस के साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, And hydrogen Right. gas. प्लस वो That- हमारा मेन कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है? मेटल। हाइड्रोजन। Just a second, beta. Metal plus base is equal to hydrogen gas. Who is reconnecting, beta? I can't see anyone in a waiting room. Fine. So our last product is that hydrogen gas. That's it. In acids and bases both, we are going to see that. At the end, what will release? Hydrogen gas. So whenever you are writing that hydrogen gas, okay, you can write down or put one arrow in upper direction. I'll show you, don't worry. Right now, I'm not able to do that annotation. Fine. Okay, so now we'll continue with, just give me a moment. पहले आपके marks दे देते हैं. Fine. Okay, 1 minute दे दो बस. Turn by turn मेरे पास और एक दोनों के है. बेटा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 6:20 हो रहा है ना? मैम ऐसा अच्छा बोल रहा हूँ, मार्क्स तो ऑलरेडी मिल गए। काव्या है यहाँ पे, काव्या बेटा म्यूट कर दो थोड़ी देर अभी। टर्न बाय टर्न सबका जितने भी पेपर्स मेरे पास है, आई विल जस्ट शेयर। फाइन। काव्या है यहाँ पे बेटा, काव्या। हाँ आपके 17 है, 1717। ओके, फिर सेकंड है जैनी। ये शायद कौन सा स्टैंडर्ड है? जस्ट अ सेकंड। जैनी इज देयर बेटा? यहाँ पे बेटा नहीं मैम नहीं है वो। ठीक है, चलो तो जैनी को रहने दो अभी साइड पे। तनिष्का, यस मैम। यस जस्ट अ सेकंड। देवम, व्हाट हैपेंड बेटा? मैम आपने मेरे मार्क्स बोल दिए। क्या बोले बेटा अब? मैम आपने मेरे मार्क्स क्या बता दिए? नहीं, वेट। जितने भी लोग रिकनेक्ट हो रहे हैं उनको पहले अंदर लेना मैम पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम तनिष्का आपके? मैम एग्जाम Yes, 24 ma'am. मार्क्स की थी। नहीं 32 थे बेटा, टोटल 32 थे। वहां पे ऊपर वो 30 मेंशन किया था, वो 32 थे। 19 बेटा, तनिष्का 19। ओके मैम। आपने सिर्फ दो ही पेपर्स यानी पेजेस सबमिट किए थे, और उसमें सारे
आंसर्स आपने नहीं लिखे, राइट बेटा तनिष्का? नहीं मैम, मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं। तनिष्का की बात करें, मेरे पास सिर्फ 2 उसके पेजेस आए, 2 पेजेस, ठीक है। मैम मीत, मैंने 4 पेजेस आपको सेंड किए थे। ठीक है, अगर 4 है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही आए हैं, ठीक है, उसके अंदर तनिष्का के नाम से। मीत आपके है 20 पटेल, जय पटेल, रुद्र के कितने हैं पूरे? बेटा म्यूट कर दो पहले, एक बार आराम से सुन लो, फिर जब खत्म हो जाए और नहीं आए तब भी कुछ पूछना है ना। 1818 जय पटेल, 1818, आफ्टर दैट रुद्र पटेल, हाँ मैम। 1919, मैम कौन सा रुद्र पटेल? नारायणपुरा वाला? यहाँ पे नारायणपुरा 1084 बेटा, 1084, ओके मैम। ठीक है। शौर्य एच पटेल 1515, शौर्य। देवम नारायणपुरा A622, रोल नंबर 1616, 1616, ओके। यश भट्ट, यस मैम। जस्ट ए सेकेंड बेटा, यश आपका बहुत ही कनेक्टिविटी इश्यू हो रहा था ना, 16 बेटा, 1616, ओके मैम। okay, then we are having Vedant Shah, Vedant, मैम मैम देयर इज नो वेदांत। Vedant, your marks, yes, what happened? 31.5. Then Diya Parmar 761, मैम These are not in our class. sorry These students are not in our class. बेटा, सब साथ में बोलोगे तो वैसे भी कुछ नहीं सुनाई देना। Ma'am, these students are not in our class. अच्छा, दिया परमार is there, दिया? No नो ma'am. मैम। Okay, what about खुशी मेवाड़ा? No नो ma'am. मैम। No, ma'am. Then Dhara Modi? No. No नो ma'am. मैम। नो मैम। Okay, then we are done then. मैम मुझे मैम, मार्क्स पर- नहीं मिले। मैम सागनिक, okay, just a second, हाँ बोलो बेटा। मैम मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो वैसे टेस्ट दी थी मैंने, तो उसमें 21 मार्क्स दिखा रहे थे और एक मैसेज आया था मैसेज बॉक्स में कि 24 मार्क्स की एग्जाम थी। 24 नहीं बेटा, Yes, 30 ma'am. 24 की नहीं है, वो पहले की होगी। इस बार का हमारा जो था ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम की थी, राइट? लास्ट हमारी जो भी टेस्ट हुई है वो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम की हुई है, मैम वो 32। है ना? राइट बेटा? हाँ मैम। वो 32 है। यस मैम, बट उसमें शौर्य आप मैम उसमें मैम आप एक मेरा मिनट मार्क्स रुक बता सकते हाँ सागनिक, एक मिनट बेटा, मैं चेक कर रही हूँ, भाई मेरे पास Thank you, अवेलेबल नहीं है, 2 मिनट दे दो मुझे। ओके, इससे पहले कि मेरा फोन हैंग हो जाए, सागनिक 1 मिनट दे दो बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर इट हियर। मुझे जो पेपर मिले हैं इसमें वेदांत, दिया, खुशी, धारा, यश, देवम, शौर्य, रुद्र, जय, मीत, तनिष्का, काव्या, जैनी, वेदांत, दिया, खुशी, धारा, बस इतने मिले बेटा। सागनिक है ना? मैम मैं साक्षी मैम को फोन करके पूछ लूंगा। ठीक है, नो इश्यू बेटा, है ना? आई विल कंफर्म दैट मैसेज, आई विल कन्वे दैट मैसेज, फाइन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक या जो भी चीज आपके पास लिखी हुई है वो बंद करो, एक नॉर्मल से पेज में, यानी पेज टीयर करने की जरूरत नहीं, उसको फाड़ने की जरूरत नहीं है, पीछे कोई खाली पेज में केमिकल प्रॉपर्टीज खुद से, अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, बट खुद से सिर्फ वर्ड के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो बेटा, ठीक है? ओके मैम। मैम मेटल्स की हमने जो यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बीच में रिएक्शन ऑफ मेटल्स लिखा है, एक फॉर्म में हमने लिखा है ऑक्सीजन, वाटर, नीचे एसिड एंड बेस, ये पूरा चार्ट दूसरे किसी पेज पे लिखने की कोशिश करो। अगर गलती से फोन यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाए कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ लेना, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा सा अपने आप ऑपरेट हो रहा है अभी कुछ दिनों से, ठीक है? ओके, सो आई एम हियर ओनली, बट स्टिल यस बेटा। मैम कल हम साइंस का मैम होमवर्क सबमिट करने जा रहे हैं मैम, तो फिर मैम क्या हाँ। कर रहे हैं मैम उसमें? मैम वर्कशीट भी नहीं
मैम व्हाट्सएप पे वर्कशीट मैंने शेयर की है बेटा, वर्कशीट मैंने Yes, शेयर ma'am, की है। आज मैं chapter मैम को 5. यस मैम चैप्टर नंबर 5 थी। चैप्टर हाँ, मैंने एक्चुअली सारे चैप्टर्स की कर दी है, तो टर्न बाय टर्न मैं मैम को बोल दूंगी कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है, तो मैम आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं आज फिर से रिमाइंडर दे दूंगी मैम को। फाइन। हमें जो टेस्ट एक्सरसाइज होती है वो आप डिस्कस करवाते हो, फिर होमवर्क में ही करना होता है। हाँ बेटा, राइट, टेक्सचुअल वाला भी वैसे ही होता है। ठीक है, अब ये सबसे पहले लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि नॉन मेटल में हमें इतना कुछ स्टडी नहीं करना है। जनरली हम देखने वाले नॉन मेटल्स जो है वो हायर स्टैंडर्ड में ही स्टडी करेंगे रिएक्शन सारे। ठीक है, तो हाँ, कंपेरेटिव स्टडी है कि मेटल में अगर ये था तो नॉन मेटल में क्या है। फाइन। सो मेटल्स हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक साथ में नहीं किया है, मेटल्स को अलग से किया है, क्योंकि वो चारों रिएक्शन हमें देखने थे। नॉन मेटल्स में हम शायद ही एक दो रिएक्शन देखेंगे, है ना। मैम हमको सारे केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं ना? अभी केमिकल फॉर्मूले नहीं लिखने बेटा, अभी सिर्फ एक चीज करनी है, सेंटर में लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स, उसके एक कॉर्नर पे हमें लिखना है जैसे हमने अभी किया। ठीक है, उसके एक कॉर्नर में वाटर लिखो, सेकंड में ऑक्सीजन, नीचे एसिड एंड बेसिस। अब जो रिएक्शन हमने देखे वो सिर्फ वर्ड के फॉर्म में लिखो, वर्ड्स, है ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। अभी भी आपको सिंबल्स के फॉर्म में नहीं बोल रही, राइट। ओके मैम। प्लीज मेक श्योर मैम कि एक कोई बार कॉपी दोबारा नहीं रिपीट, करेगा। मैम एक बार हाँ दोबारा बेटा, रिपीट करो ना, क्या लिखना है। ठीक है, मेक श्योर कोई रिपीट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, देख के कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखो अभी कितना आता है। लिखना ये है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अगर मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, मेटल अगर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या होगा, मेटल अगर रिएक्ट करते हैं एसिड या बेस के साथ तो क्या होगा। ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो अभी वर्ड्स के फॉर्म में लिखो। आपको हिंट देती हूँ, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन से। तो हमने देखा था आयरन को वहां पे और मैग्नीशियम को। ठीक है, और हमारे पास एक जनरल इक्वेशन था, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फिर सेकेंड हमने देखा था मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसमें हमने देखा था सोडियम जल वाला जाता है। एग्जाम्पल। एक और भी एग्जाम्पल होता है पोटेशियम का, जो जनरली स्टोर किया जाता है पानी के अंदर, क्योंकि वो भी विग्रसली रिएक्ट करता है अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाए। फिर थर्ड एग्जाम्पल हमने एसिड में देखा, कौन सा एसिड लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड विथ, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या ऐड किया था, जिंक, जिंक के ग्रेन्यूल्स, राइट। और बेसिस के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, जिंक के साथ या किसी और मेटल के साथ। मैम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन ऐसा कुछ था। एल्यूमिनियम स्ट्रिप, यस। और वहां पे एट दी एंड क्या रिलीज होता था, हाइड्रोजन गैस। बस ये सारा अपने आप लिखो बेटा, टेक्स्ट बुक ऑन ओपन मत रखना। मैम आपने वही बोला था ना, जिंक प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको जितना आता है उतना लिखो, वही इंपॉर्टेंट है ना। फिर टेक्स्ट बुक ओपन करके खुद से इवेल्युएट करना है कि आपका कहाँ पे वो मिसिंग हुआ। ठीक है, इसमें कोई भी चीज मगअप करने वाली तो है ही नहीं, राइट। मैम यस बेटा। मैम वो मैम यश मैम रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा। एक मिनट, वो एक्चुअली वेटिंग रूम में भी नहीं है। हाँ, वेटिंग रूम में नहीं है वो, इज ऑलरेडी इनसाइड द मीटिंग बेटा। आई थिंक वो 2 डिवाइस यूज कर रहा है, तो यहाँ पे एक तो मुझे उसका दिखा ही रहा है।
उसे बोलो एक बार फिर से ट्राई करे, क्योंकि वेटिंग रूम में नहीं है वो। हाँ मैम, बोलता हूँ। रिकनेक्टिंग, यश ये आप ही हो ना बेटा? मैम लिख दिया। ठीक है बेटा, वेट करो 2 मिनट। अब टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लो सारे रिएक्शंस। नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको रिएक्शन। यश आई थिंक बेटा आपके डिवाइस के साथ बहुत ही इश्यू है ज्यादा, क्योंकि आप आज ऑलरेडी 10-12 बार तो रिकनेक्ट हो ही चुके हो, है ना? हर बार मैंने आपको एडमिट किया है। हाँ मैम। राइट बेटा? मैम मेरा एसिड ये इशू वाला थोड़ा रॉन्ग गया। सॉल्व कर लो, है ना? अगर हो सके तो ये इशू सॉल्व करवाओ बेटा किसी तरीके से, यस क्योंकि हर बार मे भी पॉसिबल है कि हम फिर से रिपीट ना भी कर पाए। यस मैम मैम मेरा हाँ एसिड बेटा, वाला मैंने रॉन्ग सुन गया मैम। लिया। लेट देम कंप्लीट ना, आपका हो गया, अभी उनको भी कंप्लीट कर लेने दो। राइट? ठीक है, चलो तब तक आप मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या समझ में आया, कितना सही था और कितना गलत था। मैम मैं ना, हाँ हाँ आप ही। हाँ मैम एक तो मैम मैंने लिखा था ऑक्सीजन में मेटल प्लस ऑक्साइड इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, जो राइट गया। और मैम वाटर में जो मैम सल्फर लिखा था, और जो सल्फर? लिखा था वो, सर मैम सल्फर सल्फर नहीं मैम, वो जो मेटल था और वो जो मैम मेटल कौन सा था मेटल? कौन सा मैम वो मेटल बेटा? उसका नाम याद नहीं आ रहा मैम। और मैम प्लस वाटर, वो मैम है ना सोडियम। वाइगरस मैम रिएक्ट करते हैं उसमें, फिर है ना आग लग सोडियम जाती है वो। सोडियम। अच्छा यस मैम सोडियम, एक सोडियम। मिनट, सोडियम क्लोराइड तो पता है ना बेटा? सोडियम क्लोराइड यानी हमारा सॉल्ट, तो वही सोडियम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सोडियम कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है? जिसको हम नाइफ से कट कर सके ऐसे फॉर्म में। जनरली वो कैसी होनी चाहिए? नाइफ से हम मेटल को कट नहीं कर सकते, है ना? बट ये ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है। वो रेयर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, जैसे मर्क्यूरी सोडियम लिक्विड फॉर्म में क्लोराइड। है। राइट? ओके, फिर मैम मैंने लिखा मैम एसिड मेरा राइट गया, जिंक प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये वाला मेरा राइट गया। और मैम बेसिक में मैंने एल्यूमिनियम लिखा, वाटर लिखा, और मैम सोडियम लिखना भूल गया था मैम, लेकिन वहां मैम पे उसका सोडियम नहीं है बेटा। एक मिनट, वहां पे सोडियम नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वन टाइप ऑफ बेस, जो हम पानी में पहले डिसॉल्व करते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? हमने एल्यूमिनियम कहाँ पे ऐड किया था? मैम एल्यूमिनियम हमने मैम फर्स्ट ऐड किया था। एल्यूमिनियम हमने बेसिस में ऐड किया था या फिर एसिड में ऐड किया था? याद करो। मैम एल्यूमिनियम तो मैम हमने बेसिस पे ऐड किया था ना। आप बताओ। बेसिस पे किया था। हमने लास्ट क्या देखा? एल्यूमिनेट, अरे सोडियम। मैम वी आर हैविंग टू ऑप्शन, हमारे पास दो कंफ्यूजन है। कौन कौन से कंफ्यूजन है? कि हमने एल्यूमिनियम यूज किया या फिर दूसरा कौन सा है? जिंक मैम यूज किया। सोडियम ठीक है, और तो जिंक। जिंक एल्यूमिनेट था या सोडियम एल्यूमिनेट था? क्या था लास्ट रिएक्शन में? याद मैम करो। एल्यूमिनेट तो मैम बेसिक था। एल्यूमिनेट बेसिक नहीं था बेटा, एक मिनट। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। हमने जो लास्ट में बेस की प्रोडक्ट मिली थी, वो सोडियम एल्यूमिनेट थी या जिंक एल्यूमिनेट थी? सोडियम एल्यूमिनेट थी। अगर सोडियम थी तो हाँ हमने क्या मैम यूज किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो वो बेस में चला गया, तो बच गया क्या? एसिड। तो एसिड में हमने क्या यूज किया एसिड। होगा? एसिड में हमने कौन सी मेटल यूज की होगी? मैम जिंक। सोडियम। जिंक सॉरी ग्रेन्यूल्स। मैम जिंक। सोडियम जिंक मेटल ग्रेन्यूल। हमने सिर्फ वाटर में यूज की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मैम सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट, यस बेटा। मैम मेरा भी हो गया। हो गया? चलो आप एक्सप्लेन करो मुझे हाइड्रोजन गैस वाला। मैम मैंने करेक्ट कर लिया। ठीक है, मैम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। राइट? या फिर क्या बनेगा? अगर अभी किसी को केमिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है
तो अब कैसे लिखोगे? बेस वाली चलो लिखनी है, सपोज बेस वाली छोड़ो, हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, रस्टिंग वाली, ठीक है, रस्टिंग वाली, या फिर स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होगा? ये वाली इक्वेशन कौन बताएगा? मैम मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन मैम मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा ना? ये सही है, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन है मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो अब वहां पे हम चाहे आयरन रखे, मैग्नीशियम रखे या कुछ और रखे, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि उसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? Mg Mg हाँ, plus वहाँ से start करो। O2 is राइट, equal to MgO2. O2 नहीं जाएगा, यहाँ पे MgO जाएगा, क्योंकि अगर O2 जाएगा तो वो Yes, ma'am. डाई ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ये Ma'am, मैग्नीशियम तो- सिर्फ ऑक्साइड है तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बैलेंसिंग वाला जो ma'am. फंडा है, बैलेंसिंग वाला फंडा अभी हम नहीं स्टार्ट Ma'am. करेंगे, बट हाँ हाँ बोलो। मैम तो जो 2 है वो मतलब MgO के आगे लगेगा? नहीं, मैंने एक बात क्या बताई थी, जो हम आगे उसके फ्रंट में लगाएंगे वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर गलती से आपने Mg2 लिख दिया नीचे की साइड पे सबस्क्रिप्ट में, या फिर O2 नीचे लिखा, तो वो पूरा चेंज, यानी वहां पे हम क्या बता रहे हैं पता है, कि मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 एटम्स है, यानी वो मॉलिक्यूल है, बट हमारे पास तो एक ही एटम है बन रहा है यहाँ पे MgO, है ना। तो अगर आप 2 लिखोगे तो वहां पे 2 हो जाएंगे, तो वो पूरा नया कॉम्बिनेशन है। किस चीज का नया कॉम्बिनेशन? अगर आप CO लिखोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनो यानी एक ही ऑक्सीजन। अगर आप CO2 लिखोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो CO2 और CO में तो बहुत ही अलग डिफरेंस है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखूं तो वो अलग है, और सिर्फ सोडियम क्लोराइड लिखूं तो वो सॉल्ट है ना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहे हैं। तो अगर आप वहां पे कुछ चेंज करोगे 2 3 4 5, तो वो पूरा कंपाउंड मिक्सचर या मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कोई भी हमारा जो भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड बन रहा है या मिक्सचर बन रहा है, उसके हम आगे फ्रंट में लिखेंगे, ठीक है। यस मैम। तीर्थ आपने लिख दिया बेटा मीत, जय जिसके भी वीडियोस ऑफ है लिख लिया आपने सबने, पंक्ति, रुद्र, कथन, मितेन, केविन, नेश्वी, शौर्य, एंड दोज हु आर कीपिंग देयर वीडियोस ऑफ। बेटा समझ में आया? जो वीडियोस ऑफ रख रहे हैं एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, राइट, कि समझ में आया या नहीं? हाँ बोलो। मैम Yes, ma'am. मैम जो वो इक्वेशन होता है जब सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू, मैम उसमें मैम सोडियम प्लस वाटर में प्रोडक्ट क्या मिलेगी? सोडियम प्लस वाटर में प्रोडक्ट नहीं होगी, वहां रिएक्शन, एक मिनट बेटा म्यूट कर लो। हाँ, वहां पे रिएक्शन ये होगा कि वो वीगरसली एक्ट कर रहा है, यानी आपको पता है कि हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं, है ना। फायर क्रैकर्स को जब हम जलाते हैं जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर मेन कंपोनेंट है, वो हम नॉन मेटल में देखने वाले, क्योंकि फॉस्फोरस और सल्फर किसका एग्जांपल है? नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो वो उसके साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ हमने उसको रखा है, कोई रिएक्शन नहीं करवाई है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो क्योंकि रूम यानी एयर, एयर यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, और विग्रस रिएक्शन ही उसकी प्रोडक्ट है। विग्रस रिएक्शन यानी क्या, कि वहां पे फ्रिक्शन, जैसे हम मैचस्टिक को फ्रिक्शन की एग्जांपल से, फ्रिक्शन की हेल्प से उसको जलाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे फास्फोरस और सल्फर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, वो हम 6 कंबशन एंड फ्लेम में देखेंगे, ठीक है। तो वो पूरा जलता है, बट यहाँ पे उसकी कंबस्टिबल मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली विग्रसली रिएक्ट करता है। विग्रसली यानी वायलेंटली, इतना विग्रसली आपने किसी और मेटल को रिएक्ट करते हुए शायद ना देखा हो, राइट। तो यही लिखो उसके प्रोडक्ट में, यहाँ पे कोई केमिकल इक्वेशन नहीं होगी, राइट। अगर आप चाहो तो है, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन विग्रस रिएक्शन, राइट। मैम यस बेटा। मैम अगर हम लोग है ना आयरन प्लस ऐसा करें, आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो ही मैम हमको मेटल ऑक्साइड मिलेगा ना? अगर आयरन प्लस ऑक्सीजन रस्ट तभी मिले, मेटल ऑक्साइड
हाँ, मेटल ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, बट अगर रस्ट बनाना हो तो वहां पे मॉइस्चर भी चाहिए, यानी पानी भी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक रखिए बेटा। तो Fe बोलेंगे ना, Fe तो मैम ऑक्सीजन को O2, मतलब कि Fe प्लस O2 इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। नहीं, डायरेक्टली नहीं, Fe प्लस O2 प्लस H2O देन मेटल ऑक्साइड, यानी मॉइस्चर होगा एयर के अंदर। अगर वो ड्राई सीजन है तो पॉसिबल है कि कम हो, अदरवाइज मॉइस्चर इज देयर इन दी एयर। ओके मैम, ठीक है, चलो यहाँ तक रखिए बेटा। आफ्टर दैट राइट ओके, बाय मैम, बाय मैम।